बताइए। सपोज आप बात करते हैं, इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन योर डेटा स्ट्रक्चर, राइट? सो लेट्स सपोज यू वांट टू स्टोर हंड्रेड्स ऑफ नंबर और थाउजेंड्स ऑफ 1 lakhs ऑफ नंबर। जब आप वहां पे लिस्ट की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ लिस्ट, जितने भी नंबर्स अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, इंस्टेंटली क्या होता है, वो नंबर्स क्रिएट होंगे, देन वो लिस्ट के अंदर स्टोर होंगे। ओके। बट अगर आप यहाँ पे जनरेटर की बात करते हैं कि जनरेटर क्या होता है, तो जनरेटर के केस में क्या होगा, जस्ट यू हैव टू क्रिएट ए वन जनरेटर ऑब्जेक्ट। जब आप जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब भी आप उसको कॉल करते हैं, when you gonna call a generator object, so on that point it will give you the next value of the series. तो जनरेटर ऑब्जेक्ट एक आप सीक्वेंस बनाते हैं, और यू कैन आल्सो use generator are used to create the iterators. One of the difference approach is generators are the simple function which return a iterable set of items at one time at a time. Okay. And when you will call the same generator again and again, it will always give you the next value of that particular series what you have stored inside the generator. Oh, so now, and the list also doing the same thing, right? You can also store multiple value, and you can simply use for loop along with that. It will give you the next value. But the point in case of list and the generator, there's a huge memory difference. Oh, if you will discuss about the स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर आप बात करते हैं, तो वहां पे काफी बड़ा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हैं वहां पे, और वहां पे कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगी लिस्ट उन आइटम को स्टोर करने के लिए, जनरेटर के केस में वो कितने कंज्यूम करेगी लिस्ट कि उन आइटम को स्टोर करने के लिए। दैट्स अ पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। So let's suppose I'm gonna give you those few example to understand more about the generators. So let me create a one new notebook here. So in case of Python, there's a huge method to create a generator. Sometimes you can use this particular keyword. Okay. Sometimes you're gonna create a iteratable object using the iter function as well. Sometimes you're gonna create some classes and you will return multiple items from there using the yield as well. Or you can also use a list comprehensive method to create. Now the point is, let's suppose you want to create a first list here. मैं एक list बनाता हूँ, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेथड यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर रखना चाहता हूँ कुछ आइटम्स, लेट्स सपोज 10,000. Okay, so these are the items I want to store inside my list. When I'm gonna execute, so आपको ये syntax familiar होगा, right? This is a very basic syntax I have used. This is a list comprehensive. मैंने यहाँ पे प्रिंट किया डेटा वन को, जस्ट लुक एट दिस। सो लिस्ट ने क्या किया, जब भी आपने लिस्ट को रेडी किया, once you have created this list using this method, so all 10,000 numbers have been created and stored inside the list in your memory. मेमोरी में कहीं ना कहीं ये नंबर रखे हैं पहले से। Okay, when you gonna call this particular data once, your number will be fetched from your memory. It will not generate it instantly. Now in case of generators, okay, actually that particular data is a list. अगर आप यहाँ पे check करते हैं, that was the actual list what I have stored there. मैं यही काम यहाँ पे किससे करता हूँ, I'm gonna do this the same thing using the generators. Data to, मैं यहाँ पे same method use करूँगा, 10,000, only the bracket difference, and here I'm gonna use a tuple. Okay, I'm gonna use a set of parentheses. So now instead of list, because there we have used a square bracket, यहाँ पे हमने ये use किया. Instead of tuple, they will give you the generator object. Just you can simply look at the type of data to. What is the type of data to is? Generator. And now the main difference, if you're gonna print the data to, inside the data to. अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, इसको कैसे पता चला कि ये टप्पल नहीं जनरेटर ही है? क्योंकि हमने लगाया तो टप्पल ना, बस हमने टप्पल के अंदर अगर लूप लगा दिया तो वो जनरेटर में बन जाएगा। बिल्कुल, that's a method to create a generators. Okay, these are the fixed method. Either you can simply use this method to create your generators. Okay, and sometime you can also create a generator from the return of your function using the yield keyword. जैसे आप रिटर्न करते हैं फंक्शन से, तो वहां पे रिटर्न ना लगाते हुए yield कीवर्ड यूज किया जाता है जनरेटर्स को बनाने के लिए। दूसरा मेथड आप टपल कॉम्प्रिहेंसिव का यूज करते हैं जनरेटर्स को क्रिएट करने के लिए। ओके,
So the point is, let's suppose जब मैं data 2 को print कर रहा हूँ, okay, in case of data 1 it will give you the numbers until 9999, right? But in case of data 2, just it will give you the one return object with a memory address, कि ये ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न कर दिया, इसने कोई नंबर नहीं दिया आपको वहां से निकाल के, राइट? अगर आप वहां से, अब इनका साइज डिफरेंस जरा आप देखते हैं एक बार, तो मैं एक लाइब्रेरी उठा लेता हूँ, गेट साइज सीधा प्रिंट करते हैं। सबसे पहले डेटा 1 का साइज I want to print. After that, I want to print the size of data 2. Both have the 10,000 number, right? So let me print and look at the size difference. And the list size is 87,000 byte. In case of generator, it's only 112 bytes. Okay, there's a huge difference. So now the point is, when you will discuss about the generators. जनरेटर के केस में क्या होता है, आपको ये बचाता है आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। ओके, देखिए स्पेस कितना कंज्यूम कर रहा है, 112। इन केस ऑफ लिस्ट इट विल टेक ए ह्यूज स्पेस, बट इट विल टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ लिस्ट। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, जब डेटा स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो वहां पे आप चाहते हैं कि मेरा पास रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर इनफ है, ठीक है, बट आई नीड execution time is less, so then you're gonna use the same list method, okay, because it will take a memory but it will do fast as compared to generators. Because in case of generators, when you want from your generator, there's a multiple method. The first, you can use this method, next function, okay, from the data too. So it will give you the first object, you want to call the same function again, the next object, just look at this, the execution is 10th time right now, 11th time, it will give you the 2 and 3. Another method, you can also use a direct next function, ये भी जनरेटर की वैल्यूज निकाल के देता है, देखिए, until 10th 11th. the next method, आप लूप भी लगा सकते हैं। Oops, data 2, that's cool, and I want to print all the numbers. In the end, I want to print the only space, that's cool. Okay, so that's how it works. And just look at this, it will give you the from 12 not 11, क्योंकि वो 11 तक पहले आप निकाल चुके हो उससे, तो वहां से 12 से स्टार्ट किया। बताइए। एक क्वेश्चन मेरा ये है, कोई प्रोग्राम हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसमें सपोज कर लो मैंने नेक्स्ट 4 बार चला दिया है, पर फिर मैंने उसको नेक्स्ट वाले जो कमांड लाइंस थी वो मैंने डिलीट करके दोबारा से मैंने वो अपना प्रोग्राम सबमिट कर दिया किसी और को, तो जब वो नेक्स्ट प्रिंट करने लगेगा तो वो आफ्टर 4 स्टार्ट करेगा या फिर वो 0 से ही बिगिन करेगा? No, you would not be able to reset your generators if you have already fetched few values of them. Okay, it will start from the next value. Only that time, yep, you can initialize again the same thing. जब तक नहीं करेगा start, नहीं तो there's no method to reset your generators. Okay? आपको उसको initialize कराना होगा, निकाल लीजिए जितनी चाहे निकालना है, ठीक है? But let's suppose I'm gonna create a one small generators here. यहाँ बनाते हैं छोटा सा एक x equal to 4, I in my bad range and 5 or 6 what I used. X check कीजिए, it is a generator object. Let me print the values of them. Okay, so the first value, second, third, fourth, fifth. At the end, it will give you the error. Stop iteration. That's why we are using a for loop. For loop का काम क्या होता है? Sequences तब तक नंबर निकालेगा जब तक एंड नहीं हो जाएगी सीक्वेंस, जैसे एंड होगा तो अपने आप ब्रेक हो जाएगा फॉर लूप। ओके, यही काम फॉर लूप का होता था। आइटर फंक्शन से मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, फॉर लूप हमने पढ़ा था। एंड नाउ दैट्स हाउ इट विल फेच ऑल द वैल्यूज फ्रॉम ए स्पेसिफिक एक्स। अब यहाँ पे आप मैनुअली निकालो तो एरर आके बंद हो गया प्रोग्राम। ओके, अगर यही सेम चीज में दोबारा अभी यहाँ पे देखिए निकालने का कोशिश करता हूँ या इवन लूप भी लगाता हूँ, इट विल गिव यू द एरर 4x और नॉट ए एरर, माय बैड, जस्ट लुक एट दिस। ये पर कुछ और जनरेटर के अलावा कोई हाँ नहीं देगा ना? जनरेटर या लिस्ट, मतलब लिस्ट होगा या टप्पल होगा, उनमें ये एरर नहीं आएगा, ये सिर्फ जनरेटर के लिए ही है ना? बिल्कुल। आप अगर नेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में अगर आप आइटर यूज करते हैं, लेट्स सपोज आई एम गोना स्टोर योर नेम हियर दीप्ति, what happened now, the point I want to print my whole name, just I'm gonna use this method, but before using the for loop we were use a iter method for that। हम ये वाला मेथड यूज करते हैं
और आपने y में इसको रखा, तो what does it mean? Let me show you what is actually a y. तो y is a string iterator, right? If you want to fetch the values from the y, just you can simply use this method. The same thing, d I p Okay. t I and error, stop iteration. That's how the iter function is also work. Okay. x में वैल्यूज नहीं है तो प्रिंट कर लीजिए, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दोबारा इनिशियलाइज अगर मैं कर दूं उसको वहां, execute again, and now execute again, what the values. दीप्ति को दोबारा इनिशियलाइज किया मैंने, y के अंदर देखिए, और यहाँ पे इसमें तो d आ जाएगा अगर यहाँ पे मैं y लिखी दूं, ये देखिए, you'll get your values here. That's how the generators objects are work. Okay. ये जो for loop होता है जहां पर उसकी लास्ट वैल्यू पहुंचती है उसके बाद वो रुक जाता है, कोई एरर नहीं हाँ देता है बस। बिल्कुल, it will end of the series, it will give you the for loop will be terminated. Either you can also terminate your for loop using the loop controllers called break and the continue, right? Yep. ठीक है। So now just I have told you why you're gonna use. Let's suppose having an emergency generators will allow to keep the necessary applications running in your home, like your headlights and the refrigerator. Let's suppose जब आप एक्चुअल में IoTs की बात करते हैं, राइट? सो वहाँ पे जब IoTs में नॉर्मल काफ़ी जगह जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है टू स्टोर योर ह्यूज अच्छा। डेटा. Now let's suppose, let me move forward to the next point. So the point is, let's suppose how this is another method to create a generator. Let's suppose I'm going to create a one function named hello, और मैं यहाँ से ये रिटर्न करता हूँ, hi return hello और bye. That's good. एक function बनाया, no issue. I want to execute my function here. So what you are expecting, what you will get when I'm gonna, हाय हाय आएगा तो। okay, because a return statement will exit your function once a return will execute inside a function, right? So it will give you the only high because यहीं पे function end हो जाएगा, next statement नहीं चलेगी आपकी. The point is, let's suppose if you want to return a multiple statement using a single function, the method you wanna use, instead of return, just only you have to use return, and we're gonna use yield here, spelling yield, ठीक है करते हैं. Yep, the spelling is yield. ओ भाई। ठीक है, सो मैं वापस से हेलो फंक्शन कॉल करता हूँ. नाउ इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वैल्यूज, इट विल गिव यू द जनरेटर. जनरेटर। तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो नो बेनिफिट. तो स्टोर किया मैंने. अब इसमें से एक वैल्यूज निकालने के लिए यू विल यूज द सेम मेथड. आप टाइप चेक कीजिए जनरेटर्स, इधर नेक्स्ट फंक्शन और द फॉर लूप, आपकी चॉइस है. तो इट विल गिव यू द हाई, द नेक्स्ट टाइम give you the buy, next time error. So that's how you can ठीक है। simply create a generator's object using the function from the yield keywords. इस तरीके से ठीक है। आप नॉर्मल जनरेटर्स को बनाते हैं. इसमें यहाँ कोई डाउट आया जनरेटर्स में यूज कहाँ किया जाता है? वन विल डिस्कस अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देन वी हैव टू गो अलोंग विद द जनरेटर्स. अच्छा। ओके। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक अगर फंक्शन में आप जनरेटर यूज कर रहे हो, आपको दो वैल्यूज रिटर्न करानी है, तो उसकी जगह आप यील्ड यूज कर लो। टप्पल के थ्रू इसको कॉल किया जाएगा, और जहां पर आपने इसको वैल्यू लास्ट आपने टर्न कराई थी उसके बाद से ही वो रन करना शुरू करेगा। और अगर आप उसको इनिशियलाइज या रीसेट कर देते हो स्टार्टिंग में, तो वो फिर से जीरो से मतलब अपनी फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेगा। बिल्कुल. बस इतना ही है इसमें। Yeah, but there's a, you can simply discuss more differences between a generator function and the normal function as well. Okay. अच्छा। तो ये जनरेटर फंक्शन ही था ना जो आपने यील्ड लगाया है इसमें दो। Yes, these are the generators function. Okay. ठीक है। So if, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो let's suppose generators functions contain one or more statement. Okay, in case of generators function, in case of normal function, just you can simply use a one return statement. Okay, because the one return statement will execute and terminate your function. Okay, excuse me.
Yeah, hello. ओ हाँ Yeah, जी सर। yep, I'm हाँ back. जी। So hope now आप ऐसे मल्टीपल डिफरेंसेस देखते हैं. ओके, जब आप जनरेटर्स यूज करते हैं, so you will always use in next functions to fetch the values from there. Okay, so ऐसे काफी सारे डिफरेंसेस हैं, just you can simply look at the values. ठीक है। So and now हम आप बात करते हैं जनरेटर्स के बारे में. सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक डेकोरेटर्स के बारे में. ओके, अच्छा, मेथड. एक हाँ लास्ट बताइए. चीज, एक लास्ट चीज है। तो जनरेटर में बस इसके अलावा यही है, मतलब मेन और कुछ नहीं है। हाँ अच्छा, मतलब. और दूसरी चीज, हाँ बोलिए। बोलिए आप. जैसे पाइथन कोड्स वगैरह लिखे जाते हैं अभी, जैसे ऑफिस में हाँ. ऑटो यूटी का फ्रेमवर्क देखती थी मैं अभी तक। तो ऑटो यूटी के कोड्स ना बहुत सिंपल लिखे हुए थे, उनमें कोई क्लासेस का यूज नहीं था। बस फंक्शंस थे, और फंक्शंस अलग अलग फाइल में स्टोर करे हुए थे, और उनको एक जगह पे कॉल किया हुआ था सीक्वेंस वाइज। वो मतलब एक पूरा फ्रेमवर्क था 5-6 स्क्रिप्ट्स के अंदर। ओके. अच्छा, अब इन्होंने दूसरा एक दिया है पीडीटी के नाम से। उसमें क्या है कि एक फाइल के अंदर एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, एंड देन उसको किसी और फाइल में कॉल किया हुआ है, और उस फाइल में भी और भी क्लासेस हैं एंड फंक्शंस हैं। तो ठीक है. ये जनरेटर उसमें यूज हुआ होगा आपके अकॉर्डिंग? मतलब ऐसे वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे इतना सारा डेटा है, मतलब फंक्शंस हैं और क्लास है, तो वहां पे जनरेटर का यूज किया जाएगा आपके अकॉर्डिंग, या सिर्फ जनरेटर तभी यूसेज में है जब आपके पास बहुत सारा डेटा है और उसको आपको मैनिपुलेट करना है या यूज करना है किसी भी फॉर्म में? एक्चुअली आप जनरेटर्स क्या यूज करते हैं फॉर द मेमोरी इफिशिएंट. ओके, if you have a memory efficient हम्म। problem, if you have a space complexity, just I have told you, then you have to go along with the generators. Okay, when अदरवाइज नहीं। आप अगर वहाँ functions में अपने इल्ड कीवर्ड को देख रहे हैं, then the generators have been used in your program. हम्म। Okay, so just you can simply look at in a program, or it easy to implement. There is a no issue when you're gonna use the generators there. हम्म। Implementation काफी easy है, but जब आप सीधा एक ही बात आती है, when you will use a generator, you will use the generators for the memory efficient. Okay. बस, और कोई पर्पस नहीं है। Yep. ये और भी बोल सकते हैं represent the infinite stream, and the, you can also use the pipeline generators as well. Okay, तो इस तरह के कुछ हम्म। examples आप बता सकते हैं. ओके। Hi Priyanka, how are you? Sir, I'm good. How are you? I'm fine. काफी लेट हो गए आप ज्वाइन करने में. हाँ सॉरी, मुझे लगा 11:30 है, मैंने अभी मेरी वो देखा। ओके, एक्चुअली वो ग्रुप में मतलब 10:30 था वो, मतलब इस जब मैं मीटिंग क्रिएट कर रहा था तो वो मत गलती से वहाँ पे 11:30 हो गया. अच्छा, अब आज क्या पढ़ा रहे हो? जनरेटर्स मैंने करा दिया, डेकोरेटर्स की अब हम बात करते हैं. आपको कोई डाउट हो पहले तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं. आप पढ़ाइए, मैं पूछ लूंगी फिर। Sure. So now we have to move on top of decorators, guys. And now just let me know. Okay, मैं आपसे जानना चाहूँगा first of all, what do you think about the decorators? Decorators क्या होते हैं? नहीं पता सर, शायद कुछ वेबसाइट को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, नो इशू. आप बताइए. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मतलब Okay, पढ़ा था मैंने बट don't worry. बहुत। So actually, one you will discuss about the decorators. You can simply say in simple language, decorators are the very powerful and useful tool in Python. Okay, so it will allow to program if you want to pass a function inside another function as a argument using the decorator as well. Okay, you can upgrade the functionality of the function without changing the original function as well. So these are the प्रॉपर्टीज और एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डेकोरेटर. काफी यूज पावरफुल टूल है, क्योंकि आप अगर किसी फंक्शन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, ओके, इफ यू गोना यूज द सेम फंक्शन इन मल्टीपल एंड सेवरेज फाइल्स एज अ मॉड्यूल, सो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल फंक्शन यूजिंग द डेकोरेटर्स मेथड. ओके. मतलब फंक्शन सेम बट वी कैन चेंज, उसके अंदर जो है हम वो मॉडिफाई कर सकते हैं व्हेन Yep, वी you can रीयूज। manipulate the argument as well. Okay, you can upgrade the functionality of the previous one. जो पहले जितना वो काम करता था उसको और ज्यादा काम ले सकते हैं. ओरिजिनल फंक्शन को चेंज नहीं करना. ओके, देयर आर सम रीजंस. यू कैन सिंपली टेक एन वन एग्जांपल. आपके पास परमिशन इशू हो सकता है, या वो सेम फंक्शन कहीं और पे भी यूज हो रहा है. ऐसे में काफी सारे एग्जांपल्स. आप जब एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन कॉल कराते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है.
एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल आप समझने के लिए ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द डेकोरेटर्स। तो छोटा सा लेमन लैंग्वेज में एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। तो मान के चलिए आपके पास यहाँ पे आप इंस्टाग्राम एक्सेस कर रहे हैं, ओके, जस्ट यू कैन ओपन एनी वन ऑफ अकाउंट, सो आई एम गोना ओपन दिस अकाउंट, ओके। सो द पॉइंट इज मैं इनकॉग्निटो में ओपन कर रहा हूँ, आई विल नॉट लॉग इन इनटू द इंस्टाग्राम अकाउंट, राइट। सो जब भी मैं ये प्रोफाइल ओपन करूंगा, क्या मैं प्रोफाइल पिक्चर्स देख पाऊंगा इस अकाउंट की? अगर पब्लिक है, मतलब मान के चल रहे हैं, देख पाएंगे। देख पाएंगे, देयर इज अ नो इशू। मैं स्क्रॉल कर पाऊंगा, नो इशू, ओके, यू वुड बी एबल टू सी ऑल द पिक्चर्स। बट द पॉइंट इज व्हेन यू गोना लाइक एनी पिक्चर, व्हेन यू गोना टू कमेंट एनी पिक्चर, जब भी आप या डीएम करने वाले हैं, तो एक पॉपअप आपके सामने आएगा, जस्ट आई वांट टू लाइक दिस पिक्चर, सो इट विल गिव यू द लॉगिन प्रॉम्प्ट। अगर यहाँ पे यूजर्स पहले से लॉगिन होता तो क्या होता? लाइक हो जाता। अभी अगर मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर और पासवर्ड डाल देता हूँ, तो और जब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, क्या पिक्चर लाइक हो जाएगी या मेरे को दोबारा लाइक करनी पड़ेगी? ये लाइक हो जाएगी, हो जाएगी, राइट। सो बट द पॉइंट, जब मैं दूसरी पिक्चर यहाँ पे लाइक करूंगा तो उसके लिए क्या वो प्रॉम्प्ट मांगेगा लॉगिन के लिए? नहीं मांगेगा, ओके। सो नाउ द पॉइंट इज, अगर आप बात करते हैं द प्रीवियस फंक्शनैलिटी जैसे हम पहले यूज करते थे, कि अभी अगर आप, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ओके, मैंने लॉगिन का फंक्शन बनाया, इसमें कुछ यूजर नेम्स एंड ब्ला ब्ला ऑल थिंग्स पास करा दी, और इसके अंदर की फंक्शनैलिटी हम लिखेंगे अभी। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को तभी यूजर देख सकते हैं अगर वो तब लॉगिन कर पाए, ओके। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आप प्राइम की बात कर लीजिए, यू वुड नॉट बी एक्सेस एनी मूवी विदाउट द लॉगिन इनसाइड द प्राइम, राइट। बट ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं, मतलब जहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हैं, कुछ मूवीज देख विदाउट लॉगिन भी देख पाते हैं, बट कुछ चीजों को देखने के लिए आपको लॉगिन की फंक्शनैलिटी चाहिए। तो मान के चलिए इंस्टाग्राम की हम बात कर रहे हैं, राइट, या आप बात कर सकते हैं सोनी लीव, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म है कि कुछ चीजें विदाउट लॉगिन भी आप देख सकते हैं, बट कुछ चीजों के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करना। सो मान के चलिए मैंने कुछ फंक्शंस बनाए। लाइक का फंक्शन है, क्योंकि जब आप क्लिक करते हैं लाइक पे, एक फंक्शन कोई ना कोई एग्जीक्यूट होगा बिहाइंड द सीन। आप जब कमेंट करेंगे तो कमेंट के स्टोर करने के लिए यूजर के डेटाबेस में भी स्टोर होगा कमेंट, और जिसके मतलब प्रोफाइल पे कमेंट कर रहे हैं वहां भी वो उसके डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। सो नाउ, so just these are the few things what I have written here. Now the point is, हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि ये दोनों फंक्शन इसके अंदर, मतलब डिफाइन तो बाहर ही किए। अगर आप कॉल कराने की बात करते हैं कि ये दोनों फंक्शन मैंने लॉगिन के बाद कॉल कराया, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। क्योंकि लाइक आपको वहां पे दिख रहा है, आप लाइक कर सकते हैं विदाउट लॉगिन, मतलब क्लिक कर सकते हैं। आगे का जो प्रोसीजर है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, बट द पॉइंट इज you can also click on like button, you can also click on comment button, और वो execute होते हैं। But the process is, behind the scene they are calling the login when you gonna click on फर्स्ट comment। ये लॉगिन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ही लाइक या कमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल, so the point, this is actually a decorator what we are using here। so behind the scene when you gonna click on like button, क्योंकि अगर लॉगिन के बाद ही लाइक बटन आता तो यहाँ पे ऐसा ठीक है, आप लॉगिन करिए तभी आपको लाइक बटन दिख रहा है, दैट वाज अनदर थिंग, बट आपको लाइक बटन दिख रहा है। @ लगाया है, ये डेकोरेटर का सिंबल है। Yeah, this is no, not a symbol. This is a method to call a decorators. There's a multiple method. There's a alternative method to call a decorator as well. But this is the latest one. एक पुराना मेथड भी होता है, वो कौन सा होता है, और जब हम डेकोरेटर्स को लिखेंगे, I'm going to tell you, not to worry. So the point is to understand here, when you will try to click on like function. So before calling the like function, first of all, it will call the login one. When it will call a login, so the like function will be passed inside a login as a argument. Okay, just I can simply store here temp. So temp के अंदर क्या जाएगा? Like function जाएगा. Like. And there's a several conditions inside this. Let's suppose आप एक टोकन होता है ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए, आज मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो वो क्या करेगा? टैम्प को कॉल कर देगा, ठीक है। एल्स क्या करेगा? वहां पे आपको लॉगिन का प्रॉम्प्ट दे देगा, जो भी फंक्शनैलिटी होगी, यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, उनको चेक करेगा बिहाइंड द सीन, और फंक्शंस बने होंगे उसके लिए, और देन फिर आपको टैम्प कॉल कर देगा। दैट्स हाउ यू कैन सिंपली यूज, राइट। अब टैम्प के अंदर भी फंक्शन कौन सा स्पेसिफाई होगा? डिफाइन नहीं है। टैम्प के अंदर फंक्शन वो जाएगा जब वो आप यहाँ पे कॉल करेंगे, राइट।
दैट्स हाउ इट्स वर्क्स। अगर आप कमेंट पे बात करते हैं, कमेंट पे आपने क्लिक किया तो लॉग इन फिर भी कॉल हुआ, कमेंट कहाँ गया, टैब के अंदर गया, अगेन द इट विल चेक अ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट। okay, if the user is authenticated, directly it will comment, otherwise it will give you the one login prompt again, and after that you would be able to comment that particular picture or video. So that's how the decorators is work in your actual scenario. अगर आपको उसको समझने में फ्लॉ समझने में इश्यू आया है तो बताइए, otherwise let me move forward to the next point. मतलब यहाँ पे ऐसे है कि हम फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं एंड वी कैन मॉडिफाई व्हाइल Yep. रीयूजिंग द फंक्शन. we have enhanced the functionality of the like function. हमने like को चेंज नहीं किया, देखो still pass मतलब उसके अंदर जो काम था वो था, बट हमने उसकी फंक्शनैलिटी एनहांस कर दी, अपग्रेड कर दी कि आप लाइक कर पाएंगे, मतलब विदाउट लॉगिन नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि हमने उसको कॉल कराने से पहले कुछ ऑथेंटिकेशंस लगाए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, लाइक की फंक्शनैलिटी एनहांस हुई ना, ऐसे ही यहाँ पे कमेंट की भी फंक्शनैलिटी एनहांस हुई आपकी। ओके, so just you have upgrade your function without changing the previous one. Okay. So it's fine, Deepthi? हाँ जी सर। Okay, so let's suppose if you want to create a decorator function here, so let me tell you how you would be able to do that. There's a 4 participants and Sanjay is still joining, not able to join, I don't know. So let me, Sanjit is joining. हाँ yep, let me enable the disable कर देता हूँ मीटिंग रूम, क्योंकि मैंने एडमिट कर दिया है बट स्टिल ज्वाइनिंग दिखा रहे हैं वो। ओके, पता नहीं मेरे साइड नेटवर्क में इशू है या शायद उनके साथ में हो सकता है। सो लेट मी मूव फॉरवर्ड टू द गाइस. So let's suppose if I want to create my first decorator here, just I'm gonna use, first of all I'm gonna teach you how you would be able to use old method, कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक हेलो फंक्शन बनाया, वो प्रिंट करता है हाय from hello. That's a very basic function I have created. I will execute my function and you would be able to see the result from here. Okay, so that's how you can simply execute your function. But the point is, let's suppose there's a various method to upgrade the functionality of this function. Let's suppose the user expecting a different output. You have to print this particular thing into a table. User इसको table में मांग सकता है. This is a just example, right? But user चाहता है कि जो भी output मेरे function दे table के अंदर है, या और कुछ भी हो सकती है डिमांड. Okay, it could be anything. Let's suppose you want to print the same thing inside the table. ये कुछ इस तरह की टेबल आप बनाएंगे, या इंस्टेड ऑफ दैट डिमांड ये भी हो सकती थी कि ये आउटपुट आने से पहले कुछ एस्ट्रिक्स आए, फिर मेरा फाइनल आउटपुट आए जो भी आता है, फिर दोबारा एस्ट्रिक आए. ओके, दिस इज नाउ द पॉइंट, यू डोंट हैव परमिशंस टू एडिट द हेलो फंक्शन हियर. आप हेलो फंक्शन को एडिट नहीं करना है, बट यू हैव टू अपग्रेड द फंक्शनैलिटी ऑफ द हेलो एज वेल using the decorators using these methods. So now the point, if you are able to see the hello r exists there, I would not modify this function, but I'll modify something else. So let me show you. So आपके expectation के हिसाब से, just like a user want this type of output, but don't have a permissions to modify the hello one. So just I'm gonna create a new function before the hello. Okay, just you have to remember, we have to create a decorator functions before the real function. I'm going to create a new function using any name that you can simply use AP2V or the program or the decorators. Name कुछ भी हो सकता है. Because this is an identifier, just you have to follow the syntax of the identifier. What are the parameters to define identifier? Inside the decorator, I'm going to create an argument. Okay, the tab will be the argument inside a decorator. Just you have to create a one more function using any name. Okay, so I'm going to create a one wrapper. Okay, why I'm creating a wrapper, so you will be able to understand. We'll discuss more about the decorators. And here I'm going to call, just I'm going to print some messages here. तो मैं कुछ message print करता हूँ. 15 से multiply, that's copy and paste, and now tab. That's what I have done. So now the point is, just I have defined a function inside a function, right? तो इस function के अंदर एक और function बनाया, और उस function के जो body है उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो कुछ एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, उसके बाद टैम्प को कॉल करेगा, बिकॉज टैम्प इज ए फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे भी आप जब भी डेकोरेटर कॉल होगा उसके आर्ग्यूमेंट में जो भी आएगा वो एक फंक्शन होगा, क्योंकि आप कॉल कर रहे हैं उसको. यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कराने के बाद भी आप कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं.
अब यहाँ पे अगर आप लाइन नंबर को समझते हैं, जब लाइन 1 में डेकोरेटर कॉल होता है, ओके, तो कॉल होने पे कोई भी फंक्शन तो अपनी बॉडी इनिशियलाइज करता है जितनी बॉडी इसमें लाइंस होंगी। तो बट हुआ क्या, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन चला, तो इस वाली लाइन के बाद कौन सी लाइन चलेगी जो आप यहाँ लिखेंगे कुछ भी, तो लास्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले फंक्शन को रिटर्न कर देता हूँ। ओके, सो द लास्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट यू आर ट्राइंग टू रिटर्न योर रैपर। जब ये रिटर्न होगा तो वहां जैसे ही रिटर्न होगा तो अपने आप कॉल हो जाएगा। दैट्स हाउ यू गोना यूज दिस। एंड नाउ टू अंडरस्टैंड, जब आप ऑल मेथड का यूज करते हैं इन केस ऑफ डेकोरेटर्स, सो व्हाट यू गोना यूज, लेट्स सपोज आई एम गोना कॉल माय डेकोरेटर फंक्शन। मैं डेकोरेटर को कॉल करता हूं, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट की नीड है, आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन होना चाहिए। So just I'm gonna use a hello function here. Just I have passed my the earlier one function, वो मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब वो रिटर्न भी करेगा आपको कुछ, अगर वो रिटर्न कर रहा है तो उसको कहीं पे भी रख सकते हैं XYZ, तो मैं क्या करता हूँ हेलो में ही रख लेता हूँ। ओके सर मेरे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो आपने डेकोरेटर ये डिफाइन करा है फंक्शन जिसके अंदर आपने टेम्प वैल्यू पास करी लाइन नंबर 1 पे ही, तो ये दिस फंक्शन इज अ डेकोरेटर, मतलब ये अपने आप में भी एक डेकोरेटर है ना? लाइन कौन से वाला है, सॉरी, लाइन नंबर 1 में जो फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो जिस फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन करा है डेकोरेटर, मतलब डेकोरेटर नाम का जो फंक्शन है, तो क्या वो खुद में एक डेकोरेटर है या सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन है? नहीं, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, जस्ट यू आर यूजिंग ए फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। दिस इज नॉट ए डेकोरेटर। डेकोरेटर ये यहाँ पे आगे बनता है जब आप उसके अंदर एक फंक्शन पास करा रहे हैं और वो उस मेथड से कॉल हो रहा है। Okay, that you will call as a decorators. नाम इसका कुछ भी हो सकता था, you can use any one name, okay, not to worry about it. So the point is we are trying to call our the same functions what we have initialized in line number 1. Just we are trying to pass a one argument, and the argument is not a simple argument. This is another function what I have initialized or what I have declared in line number 9. One, it will return another function to you, just you have defined inside a function. ये पूरे फंक्शन को रिटर्न करेगा आपको, और ये रैपर फंक्शन कहाँ जाएगा, इस हेलो में। अब जब भी अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, नो एरर, देयर इज नो इशू। आप अब हेलो को एग्जीक्यूट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस हेलो, इसको एग्जीक्यूट करेगा। जस्ट दिस इज ए इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सो लाइन नंबर 9 इंटरप्रेट हो गया 13 से, ओवरराइट हो गया। एंड जस्ट लुक एट दिस, you didn't change anything in your hello function, but you are still able to see the expected output you are expect from the users जो आपकी requirement थी। So that's how the decorators is work, and now this is one old method to call your decorators. Instead of calling decorators using this method, you can also call the decorators just using the pretty forward method decorators. at लगाइए, ऊपर लिख दीजिए जिस फंक्शन के साथ कॉल कराना है, the same, there is no change, still able to see. So ये आप methods use करते हैं। If you have any doubt, Sanjeet, Priyanka and Deepti, just let me know, otherwise move forward. Okay, so hi Sanjeet, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। कोई डाउट है इसमें? या एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो स्टार्टिंग के पॉइंट में। Okay, तो अगर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ guys, just understanding. So decorators is a very powerful tool in your Python, okay, and which will give you the functionality to upgrade your function without changing the original one. Okay, so and you can simply pass a function inside another function as a argument using the decorator as well. तो ये कुछ डेकोरेटर की थ्योरी है, हमने काफी बात करी थी इसके ऊपर, बट आई हैव जस्ट गिव यू द आइडिया कि डेकोरेटर क्या होता है, कि आपको एक फंक्शन को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे हमने अभी हेलो को अपग्रेड किया, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, बट हमने फिर भी इसको अपग्रेड करके देखिए कुछ स्टेटमेंट्स चेंज कर दी। सो दैट्स एक्चुअली डेकोरेटर्स इज ओके। सो दिस इज वेरी पावरफुल, आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेगा। एंड यू कैन आल्सो पास द आर्गुमेंट एंड देयर इज अ मल्टीपल मेथड। सो आगे बढ़ते हैं। सो द पॉइंट इज, मैं बात करता हूं जब यहाँ पे, ठीक है आप कॉल कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। सो द पॉइंट, लेट्स सपोज it will print the hi hello, that's cool, no issue. It will take a two argument from you as well. Okay, what are the arguments? A comma B. दो numbers आपसे लेता है, either it could be num1 num2, it's your choice, you can simply put any example. It will print the division of both numbers to you. Division आपको number का दे रहा है। Okay, and to take out the division, just you can simply use A/B,
Either you can also use f string if you are not comfortable along with it. आप f string का use कर लीजिए यहाँ पे. Okay, and then inside the f string just I'm gonna mention division a comma b. That's how it look like. Okay, no issue. Execute करते हैं. हेलो को कॉल किया. अब ऐसे कॉल करेंगे तो एरर देगा. ठीक है, 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर मिसिंग. तो जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू पास 10 और 20. मैंने पास कराया. And what happened? So the point is, because whatever you are trying to pass inside the hello function as an argument, both the arguments will be handled by the wrapper one. तो वो रैपर से हैंडल होते हैं. ये बता रहे हैं कि रैपर 0 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, बट आप 2 दे रहे हैं क्योंकि बिकॉज यू डिडंट पास एनी आर्ग्यूमेंट इनसाइड द रैपर. क्योंकि जब ये फंक्शन कॉल होता है, ये खुद एक आर्ग्यूमेंट बन के जाता है इस डेकोरेटर के अंदर टेम्प के साथ. तो अब यहाँ फंक्शन के अंदर ऐसे आर्ग्यूमेंट तो आप नहीं पास कराएंगे. ओके, टू पास योर आर्ग्यूमेंट्स, ओके, टू फैच योर आर्ग्यूमेंट्स देयर, दैट्स व्हाई यू हैव क्रिएटेड अनदर फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन. इसी वजह से आपने ये फंक्शन बनाया रैपर. So the point is, when you want to pass some argument, just you can simply x or y, कुछ भी हो सकता है वैल्यू. So x के अंदर क्या इनिशियलाइज होगा, a, and y के अंदर b इनिशियलाइज हो जाएगा. अब यहाँ पे टेम्प में कॉल करा दिया इनको just as it is x and y. That's how you can pass. And now there's a no issue, all things working fine, and you would be able to understand 0.5 या आप जो भी चाहते हैं रिजल्ट 5.0. यहाँ पे आपने रखा 15 और यहाँ पे आपने रखा 2, you will get the 7.5. That's how it works. Okay, there's a no issue to understand this. Both the arguments will be handled by the function inside a function. Okay, and now you'll be able to execute your program. The point is, there's a one more requirement has been come. And now what happen if I'm gonna pass a second value is greater than the first value? So it will give you the values in zeros, right? 0.0.75. But this is a one requirement for the user. I want to divide the greater number from the lesser one. Okay. And now one condition, you would not be able to change the hello. आपको hello को change नहीं करना है. So just you have to manipulate the arguments of the hello functions using the decorators functionality. And to do this thing, just what you're gonna use here, before just you have to understand when you are trying to calling a hello function here, before calling the actual hello, it will pass the hello, the whole data of the hello inside the decorator using this functionality. अब वहां पे hello कॉल होने से पहले इसके आर्ग्यूमेंट भी आ जा रहे हैं और hello फंक्शन खुद भी आ जा रहा है inside the decorators. Before calling the temp, just you have the values x and y. तो आप एक्चुअल फंक्शन कॉल करने से पहले, इनिशियलाइज करने से पहले, क्या पता है कितना ह्यूज मेमोरी लेता, कितना टाइम लेता, तो वहां वैल्यूज को डालने से पहले आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी कंडीशन लगा सकते हैं. If y is greater than x, what do you want to do? Just you want to swap the values. Or either you can also आप चेंज भी कर सकते हैं कि टेम्प को yx डाल के चेंज करा दीजिए. That's your choice, right? So मैंने क्या किया, ये उल्टा ये हो गया y को x. मैंने नॉर्मल यहाँ पे नंबर को स्वैप कर दिया ऑन वन कंडीशन, अगर y बड़ा है x से तो तभी वो स्वैप करेगा और एज इट इज उसमें पास कर देगा. दैट्स हाउ इट्स वर्क्स. हमने इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं किया. एंड यू हैव अपग्रेड द फंक्शनैलिटी ऑफ योर फंक्शन एज वेल. Instead of 0.075, just look at this, what it will give you the next time. It will give you the 13.33, because when you're going to divide 200 by 15, so you will get this value. Okay, अगर आप उसको भी अभी execute करते हैं, because that was a 70th statement. पुरानी statement है. Just look at this. Okay, hope you got the idea, guys. Why we are using a wrapper, and how you would be able to manipulate the argument of your function using the decorators. Got it? रैपर में से डेकोरेटर के अंदर ही यूज होता है, मींस सिर्फ डेकोरेटर स्पेसिफिक या कहीं और भी नहीं. द पॉइंट इज एक फंक्शन के अंदर बिल्कुल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है. हेलो, अगर आपने लोकल, नॉन लोकल और ग्लोबल की बात सुनी है तो वहाँ ऐसे ही होता है. जस्ट लाइक हेलो फंक्शन, हेलो की जगह कुछ और ले लेते हैं, एक्स फंक्शन ले लेते हैं. ठीक है, इनसाइड द एक्स मैं क्या करता हूँ, एक वाई फंक्शन बना देता हूँ. नो इशू. आप यहाँ पे क्या कराना चाहते हैं, हाई फ्रॉम वाई. ओके, एक वेरिएबल एक्स तो नहीं बनाएंगे, ए बना लेते हैं 10. ठीक है, अब ये क्या है एक्चुअल में, इनको समझने के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रिंट ए की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करता हूँ,
निकल तो जाएगा ऐसे तो, अरे यार सिंगल कॉर्ड्स, दैट्स गुड। सो अभी मैंने ऐसे किया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट y फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दैट्स ए नॉर्मल थिंग। और यहाँ पे एक और चीज करते हैं, एक b की वैल्यू बनाते हैं, a की वैल्यू भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है 20, ठीक है, या a की वैल्यू 20 ही रखते हैं, ठीक है। वंस यू हैव कॉल द y, या y से पहले आपकी चॉइस है, आपने a की वैल्यू को कॉल किया, ओके। और यहाँ से आया स्टेटमेंट फ्रॉम x फंक्शन, वो तो ठीक है, नो इशू। या वही लिख सकते थे आप, हाई फ्रॉम y, इस स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। सो these are the normal functions I have created. There's no use of decorators and the blah, all these things. When I'm going to call my x function, what you are expecting? Let me know, guys. आपको क्या क्या मिलने वाला है? Can you please let me explain? I from x सबसे पहले क्या मिलेगा? a का वैल्यू सबसे पहले 20 मिलेगा। Are you sure? Just try to understand. Line on which line number will be execute? Just give me the one idea. अरे यार, what happened? Oh, that's good. So now फोर सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? सेकेंड लाइन, राइट? सेकंड लाइन And you have initialized the value a is equal to 20. No issue. 20 What is the type of this variable? Local variable. This is not a global. You do understand between the difference between the local and the global, right? Because if you're gonna print the value of a outside the x function, you would get a error. A is not defined because a is a local variable of the x function. And after that, it will execute the third line. Okay, it will initialize a y function here. And now just you are saying it will give you the 20, but the point is after that it will execute the line number 6, and from 6 line just you will be able to execute the line number 4. 7 6 नहीं, 6 से सीधा 4 पे आएंगे ना, just फंक्शन कॉल अच्छा हो रहा हाँ वो function y call हो कॉल रहा हो है। रहा है ठीक है and now you have initialized the value a is equal to 10. So अभी क्या वैल्यू देगा आपको यहाँ पे? अब a का वैल्यू 10 आएगा Okay, and हाई after that फ्रॉम y फंक्शन after that it will give you the 20. Okay, now the point is this is not a local variable, this is a non-local variable. Okay, ऐसे पहले local होता है फिर non-local होता है, उससे पहले बाहर global होता है। The point is चलिए let's पहले वाला तो समझ में आया दैट a का वैल्यू 10 प्रिंट होगा क्योंकि वो y फंक्शन कॉल कर रहा है देन 20 कैसे प्रिंट हो रहा है उसका एक अलग स्कोप है ना वेरिएबल का, just you have to understand the y कॉल namespace. होने के बाद फिर क्या हो रहा है y होने के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट चल रही है, और यहाँ इस वाले स्कोप के अंदर आपने a को तो 20 इनिशियलाइज किया था ना। ओके ओके, क्योंकि वो सिर्फ जो a की वैल्यू 10 थी वो उसके अंदर तक थी। आप चाहते हैं नहीं मेरे को a की वैल्यू को 10 कर देना है, तो उसके लिए एक चीज लिखते हैं, नॉन लोकल a, एग्जीक्यूट द सेम थिंग अगेन। क्या मिला? non-local is a keyword Yep, non-local Yeah. is a keyword, and the local is also a keyword, and the global is also a keyword. लोकल ग्लोबल का पता है नॉन ओके, नॉन लोकल भी होता है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन की बात होती है। ओके, सो अब ए को क्या ग्लोबल नहीं बनाया, नॉन लोकल का मतलब हुआ कि y के अंदर जो वैल्यूज हैं, मतलब a है, वो एक्सेस हो सकता है इसके पेरेंट फंक्शन से, ठीक है, यहां तक चेंज हो गया। बट अगर आप स्टिल आप क्या चाहते हैं कि मैं अगर यहाँ वैल्यू प्रिंट करता हूँ, या दूसरे स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि a की वैल्यू ट्राई करना हूँ, कोशिश करता हूँ प्रिंट करने की, तो क्या मिला? a इज नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि a इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। बट अगर यहाँ पे क्या करता मैं, ग्लोबल नो इशू, द a इज 10 बट स्टिल यू आर गेटिंग द 20, बिकॉज आपने इस नेम स्पेस में नहीं दिया, बट आप जब यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे तो क्या मिलेगा? So that's a difference between the namespaces, or you can simply understand the difference between the workspace. Okay, got it, guys?
Yeah. So now let me move forward. Hope you got the idea. Now there's a one more point. Let's suppose in some sort of, अगर आप बात करते हैं Django applications, web applications की, तो you are using a decorators in huge amount. Okay, आप बहुत ज़्यादा decorators use करते हैं. Let's suppose if you are trying to redirect a particular URL using the decorators. Okay, let's suppose the same thing you have happened inside the Instagram, right? अगर आप कोई एक पोस्ट को ओपन करते हैं तो वहां पे यूआरएल पे बात आती है जब वेब डेवलपमेंट की आप बात करते हैं कि क्योंकि सर्वर कैसे समझता है, क्योंकि आपने क्या यूआरएल हिट किया. ठीक है, अगर मैं ये यूआरएल हिट करता हूँ लॉग इन, ओके, या किसी और चीज पे मैं इस तरह का कोई यूआरएल हिट करता हूँ, तो आपको कौन सा पेज देगा? ये सीधा क्या करता है, यूजर नेम सर्च कर देता है, माय बैड. बट ऐसे काफी सारे पेज होते हैं कि जैसे लेट्स सपोज आपने mail.google.com डाला, ठीक है, मैं mail.u.0 डालता हूँ तो मेरा एक अलग ईमेल एड्रेस खुलेगा. मैंने 1 डाला 0 की जगह तो दूसरे ईमेल से मेरी मेल्स खोलेगा. इट विल डिपेंड ऑन टॉप ऑफ यूआरएल व्हाट यूआरएल यू आर यूजिंग हियर. बट इन केस ऑफ व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट द डेकोरेटर्स, तो ऐसे काफी टाइम होता है कि डेकोरेटर्स में भी आर्गुमेंट पास होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इन वेब डेवलपमेंट वी आर पासिंग द यूआरएल्स इनसाइड द डेकोरेटर कि जब ये हेलो फंक्शन कॉल हो जाएगा तो आप इसके साथ हेलो भेज दीजिएगा. वो वहां चला जाएगा, कैसे हैंडल होगा वो आगे देखेंगे. बट दिस टाइप ऑफ यूआरएल मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर कॉलिंग. So just the simple method, you can also pass the argument inside the decorators. Got it? And the argument could be anything. It could be hello as well. Hi, कुछ भी हो सकता है argument. But just you have to understand how you would be able to accept this particular argument. ये कैसे accept होगा? And now to understand this theory, let's suppose मैं यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया देता हूँ. अब ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे ऐसे नहीं कराना ना इसको. That's good. So this is a no issue. The point is, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं जब हेलो फंक्शन कॉल करता हूँ तो मैं 1510 डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सचिन लिखा. अब ये आपको जब फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फंक्शन से, बताइए. What it will give you? एरर देगा कौन सा? कि जो आर्गुमेंट पास कर रहा है वो सही नहीं है. मतलब क्या, कहाँ, किस लाइन में एरर आना चाहिए? थोड़ा सा प्रोग्राम का फ्लो समझिए एक बार. Anyone else? It will give you the error in line number 4. Okay, because you cannot check the conditions between the integer and the string. Okay, so let's look at this. Line number 4 में error आया. Just I have told you cannot operate this operator along with the instance of the string and the integer. That's a very simple example. The point is, I need one more requirement in my functions. Okay, and the requirement is, I will not execute the hello functions. First of all, I have to manipulate the arguments of it and the type of the arguments I'm gonna pass inside the decorators. Both the arguments should be integer. So just मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप पास करा दिया. आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, हाई वाले नंबर्स व्हाटएवर यू गोना पास. तो मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास करा है. आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है? इंट. दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर आई हैव पास्ड. व्हाट डज इट मीन? मैं चाहता हूं कि ये दोनों आर्ग्यूमेंट इंटीजर हो. मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा तो फ्लोट हो, मतलब जो मैं चाहता हूँ. द पॉइंट इज, सो आई हैव पास्ड वन मोर आर्ग्यूमेंट, एंड टू अंडरस्टैंड दिस आर्ग्यूमेंट जस्ट यू नीड टू क्रिएट ए वन मोर फंक्शन. इसको हैंडल करने के लिए एक फंक्शन की चैन और बन जाती है. फंक्शन का नाम कुछ भी रखिए, डेकोरेटर. ओके, बट आपको इसका नाम चेंज करना होगा फिर अंदर वाले का, क्योंकि या तो यहाँ पे कुछ और कर दीजिए, डैक कर दीजिए, दैट्स योर चॉइस. यहाँ पे डैक होगा तो यहाँ पे भी डैक होगा. फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी होती है. ओके, डैक कर दिया, कोई इशू नहीं है. डेकोरेटर्स आपका टेम्प संभाल रहा है, ऑल क्लियर. यहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट संभाल रहा है. मेन फंक्शन में इस बार फंक्शन ना जाके उसका आर्ग्यूमेंट जाएगा जो आपने यहाँ डाला था. ओके, इंटीजर उसमें जाएगा, उसके अंदर एक फंक्शन, उसमें ये जाएगा, उसके अंदर फंक्शन, उसके अंदर ये जाएंगे. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. Once it will initialize this value, it will return this particular thing, and it will, you have to return the decorator as well. आपको ये भी रिटर्न करना होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा ना. नहीं तो जस्ट लाइक लाइन नंबर जब डेक कॉल होगा तो ये इनिशियलाइजेशन हुआ और नीचे आके चला गया तो ये तो कॉल ही नहीं हुआ डेकोरेटर, तो रैपर कैसे चलेगा? That's why you have returned the wrapper. After that you have returned the decorators. The point is, just you have defined one more condition कि भैया integer होना चाहिए.
आपने हैंडल तो कर लिया, कोई इशू नहीं आएगा। कोलन, अरे पीछे लगना है, ठीक है। सो कोई इशू नहीं आएगा, पास कीजिए, बट एरर स्टिल आ रहा है अभी भी आपके पास, वही कि एरर है क्योंकि कोई कंडीशंस नहीं लगाई। क्या कंडीशन लगा सकते हैं? लेट्स सपोज you can simply apply one more condition. If एक फंक्शन होता है is instance, आप ये यूज कर सकते हैं। इंस्टेंस के साथ क्या करें कि x क्या होना चाहिए, arg होना चाहिए। arg के अंदर क्या है, इंटीजर है। एक और कंडीशन एंड is instance कि y भी arg होना चाहिए, तभी हम अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे और कंडीशन भी तभी चेक होंगे। अदरवाइज सिंपली ये मैसेज प्रिंट होंगे और एल्स डाल सकते हैं आप। ओके, प्रिंट use integer values. That's successfully execute. Just look at this. Use the integer values. Let me pass the integer values. That's fine. There's no error. That's how you would be able to handle the argument of the decorators. यहाँ कोई डाउट आया समझने में किसी लाइन में तो बताइए। नहीं सर। ठीक है सर। Okay, so that's how you would be able to handle the arguments of the decorators, guys. Just you have to create a one more functions and function. And now you can also use a decorators along with the classes. आप classes के साथ भी decorators को use करते हैं। Okay, या chain की बात कर लीजिए, you can also use a multiple chain decorators along with the decorators. What does it mean? Let's suppose मैं अगर इस वाले का एक छोटा सा example लेता हूँ समझने के लिए, इसको कॉपी किया कि मतलब आप मल्टीपल डेकोरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये है कहने का। और लेट्स सपोज मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया, इसका नाम स्टार रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हैश, ठीक है। या कुछ और ले लेते हैं, हैश पहले से एक फंक्शन होता है एक्चुअल में, तो हैश ptr, ठीक है। ये फंक्शन लिया मैंने, इसके अंदर भी सेम फंक्शनैलिटी लिख देते हैं, नो इशू। यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह मैं इसमें ये प्रिंट करा देता हूँ, ये टाइम एंड द पॉइंट इज, यहाँ पे मैं पहले डेकोरेटर्स की जगह स्टार कॉल कराऊंगा, फिर उसके बाद में कराऊंगा हैश टीआर। सो दैट्स हाउ गाइस। एंड नाउ एरर कहाँ गया? ओह, अभी भी एरर है। टू आर्ग्यूमेंट कहाँ लिए हुए हैं? ये बोल रहे हैं हेलो हेलो हेलो, दो आर्ग्यूमेंट गॉट वन। ओह, आर्ग्यूमेंट कैसे पास करना है? टेम्प लिया, स्टार बनाया, रैपर में तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है ना। ओके, सो व्हेयर इज द एरर गाइस? स्ट्रिक कहाँ हो रही है? हैश एटीटीआर दो एक्सपेक्ट कर रहा है, बट हम एक डाल रहे हैं, और वो यहाँ पे टेम्प कॉल किया, रैपर बनाया, रैपर के अंदर प्रिंट हुआ, टेम्प कॉल हुआ, ठीक है, और फिर प्रिंट किया, फिर रिटर्न कर दिया रैपर को। अगर हम बात कर रहे हैं वन वी आर ट्राइंग टू कॉल आवर बोथ द थिंग्स अलोंग विद इट, सो ओह सॉरी, ये एक्चुअल में एक इनबिल्ट फंक्शन मैंने लगा दिया, देखिए माय बैड, उसके स्पेलिंग में इशू है। यप, नाउ दिस इज एक्चुअल दिस फंक्शन, वो एक इनबिल्ट फंक्शन लग गया था। दैट्स कूल। नाउ हेलो, and now just call this, just look at this. Okay, just you can simply try to understand the flow of your program. well, कोशिश कीजिए, समझ में आता है, अगर किसी को आया तो मेरे को एक्सप्लेन कीजिए एक बार, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ। ओके, किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हुआ। Anyone explain?
जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी लाइन चली बताइए दीप्ति। हाँ सर 15th वाली लाइन चली पहले, ठीक है, देन मतलब 16 पहले इसने नहीं स्टार को 15, कॉल किया। हाँ स्टार को कॉल करने के बाद वो स्टार में गया, देन रैपर में गया, उसने टेम्प ले ही लिया था, मतलब एज हेलो जो फंक्शन था वो बिल्कुल टेम्प में पास हो गया था, देन उसने टेम्प को कॉल कर दिया और रिटर्न कर दिया रैपर। तो यहाँ पर वो स्टार प्रिंट हो गया स्टार के और बाद टेम्प। देखिए क्या हुआ, मैं बताता हूँ। Let's suppose जो what we are doing, so first of all it will call the star, right? दो decorators हैं. This is called a chain decorators. Now the point is, let's suppose first of all it will call the star and pass temp as a argument. Inside the temp you have store the hello function. Okay. Still you have a one more decorators there along with the hello कि जब भी hello call होगा तो decorator तो call होगा, ये वाला वो हो चुका call। तो वहां पे क्या किया इसने, it will return the wrapper. Okay, that's cool. And when it will return the wrapper, the function has been executed. It will print the asterisk sign there. Asterisk उसने print किए 15 and you are able to see. Once again it will call the temp again. तो temp जैसे यहाँ पे call हुआ तो line number 5 पे तो आया ही नहीं है। temp again call हुआ, temp के साथ एक और आपने यहाँ पे decorator लगाया हुआ था। Once you have attached one more decorators, so इस decorator पे आ गया, इस function पे आ गया। तो यहाँ पे इसने hash call किया। वंस इट द हैश बिन कॉल, जब हैश कॉल हो चुका है तो उसने क्या किया, टेम्प को कॉल किया, टेम्प के साथ दोनों डेकोरेटर्स कॉल हो चुके थे, तो वो क्या करेगा, हाई फ्रॉम